gladly bow my knee. I'm glad about love. Worship you. Yeah, la 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 la. Wherever you be. Go da la 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 la. Wherever you be. Go da la 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 la. I wanna see you. Aye, le, 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 le. I bow before your Thank you for your goodness. Thank you for your grace. और तेरी तारीफ के करते हैं Thank you for your power. और तेरी कुदरत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं Thank you, Lord. खुदावंद तेरा शुक्र Breathe upon every one of us. आप सबों को मेरी तरफ से सलाम Breathe upon every one of us. सबको सलाम खुदावंद की सलामती आप सब पर Establish रहे your presence. Establish your presence. और अपनी मौजूदगी यहाँ कायम कर Establish your power. अपनी कुदरत यहाँ कायम कर Establish your kingdom. अपनी बादशाही यहाँ कायम कर Establish your grace. और अपना फजल यहाँ कायम कर Thank you, Lord. खुदावंद तेरा शुक्र हो In Jesus' mighty name. यीशु के कादिर नाम में Come on, let us clap our hands for Jesus. आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं Hallelujah. हालेलुया I bring you greetings from Nigeria. और मैं नाइजीरिया से आपके लिए जो है वो सलाम लाया हूँ I am excited to be part of your family. और मैं जो है आपकी फैमिली का हिस्सा बनकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ Please put your hands for Pastor Miros, Jerome, Ivan, and all the mighty pastors here. Please clap for them. और Clap इन for सब them. खादमों के लिए जोरदार Clap तालियां for them, बजाएं clap for them. Wonderful family of God. खुदा का एक बहुत खूबसूरत खानदान I really है appreciate you. और मैं इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता You हूँ are such a blessing. और आप जो हैं बाबरकत लोग हैं Hallelujah. हालेलुया I see myself as your family. और मैं अपने आप को आपके खानदान के तौर पर देखता हूँ Please see me as your family. और मुझे भी अपने खानदान के तौर पर देखिए After the service this night, I'm flying back to Nigeria. और इस जो है इबादत के बाद मैं नाइजीरिया वापस चला जाऊंगा I have been in Pakistan for 7 days now, और मैं 7 दिन के लिए पाकिस्तान में था and it has been wonderful. और ये एक बहुत अच्छा तजुर्बा था God is great. खुदावंद अजीम खुदा है He giveth grace according to His will. और अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो अपना फजल जारी करता है See me as your family. मुझे अपने खानदान के तौर पर I देखिए am your brother, मैं आपका भाई हूँ and I love you all. और मैं आप सबसे मोहब्बत करता हूँ I want you to look at Joel chapter 2. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खोलें Joel chapter 2, योएल उसका दूसरा बाब verse 28. और उसकी 28वीं आयत से Joel 2:28. Hallelujah. हालेलुया He said, and it shall come to pass afterward. Joel 2, just for a minute. And it shall come to pass afterward और खुदावंद के कलाम में ये लिखा है और ऐसा होगा that I will pour out of my spirit कि मैं अपनी रूह हर फर्द बश पर उंडेलूंगा upon all flesh, हर फर्द बशर पर and your sons और तुम्हारे बेटे and your daughters और तुम्हारी बेटियां shall prophesy. नबूवत करेंगी The old men shall dream dreams,
और बूढ़े जो हैं वो ख्वाब देखेंगे Your young men shall see visions. और नौजवान रोया देखेंगे And also upon the servants और खादमों पर and upon the handmaids, house helps, और काम करने वालों पर in those days इन दिनों में will I pour out my spirit, और मैं अपनी रूह उन पर and I उंडेलूंगा will show wonders in the heaven और मैं जो है आसमान पर निशान अजायब दिखाऊंगा and in the earth, और जमीन पर blood and fire खून और आग and pillars of smoke. और जो है धुआं जो है। Look at the verse 28 again. 28वीं आयत को This is a देखें। prophecy. ये एक नबूवत है। Joel 2:28. योएल उसके दूसरे बाप में It says, and it shall come to pass. और यहाँ लिखा है कि ऐसा होगा। The Spirit of the Lord spoke to Prophet Joel. और खुदा का रूह जो है वो योएल नबी से कलाम कर रहा है Because in the old covenant, क्योंकि पुराने अहद के अंदर everybody is not entitled to receive the Spirit of God. क्योंकि पुराने अहद के अंदर जो है वो हर कोई शख्स जो है खुदा की रूह को हासिल ना कर सकता था। The Spirit mostly rested on kings, prophets, and priests. और खुदा का रूह है वो ज्यादातर जो है नबियों पर और बादशाहों पर ठहरता। That's why when you read the Old Testament, इसीलिए जब हम पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं we see mostly kings, और इसीलिए हम ज्यादातर देखते हैं बादशाह, prophets, or नबी judges, और इसी तरह जो है वो अदालत करने वाले जो लोग हैं and priests. और जो कलाम को बयान करते हैं, These are the ones that carry the Spirit of God. यही वो लोग हैं जो खुदा की रूह को लेते। But the Lord prophesied through Joel. और खुदावन जो है वो योएल नबी की मार्फत फरमाता है He says, Joel, tell my people और वो फरमाते हैं कि मेरे लोगों को बता दे that a time is coming in the future, कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा that in those days, कि उन दिनों में, and I'm happy to announce to you और मैं आज आपको बताने में खुशी महसूस करता that हूँ we are in the days, कि हम इस दिन के we अंदर are in मौजूद the हैं, days of the Spirit. कि इस दिन के अंदर मौजूद है जब रूह We ठहरता are in है। the days that Joel prophesied about. आप उस दिन के अंदर मौजूद हैं जिसके बारे में योएल नबी ने नबूवत की है। Clap your hand for Jesus Christ. तालियां बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। It is a privilege और ये एक बहुत अजाज की बात है to be born in these days. इस दिन के अंदर पैदा होना। But while Joel was prophesying, और यहाँ क्यों जो है योएल जो है इस बात के नबूवत कर रहे हैं, this time had not come. अभी तक ये वक्त नहीं आया Because this was like 200 years before Christ. और ये यीशु मसीह के पैदा होने से 2000 साल पहले की बात है Like 200 years before और 200 Jesus. साल Before Jesus पहले was की born. बात है यीशु मसीह के पैदा होने से। And Joel prophesied. और योएल नबी जो है वो इस बारे में नबूवत करते हैं He said, the Spirit of the Lord said कि खुदावन का रूह फरमाता है that it shall come to pass कि ऐसा होगा that I will pour out my Spirit. कि मैं अपनी रूह जो है वो उंडेलूंगा I will change the rule और मैं जो है वो कवानीन को बदल दूंगा। where some people can receive my Spirit and some people cannot. और जहाँ ऐसा होता था कि कुछ लोग मेरे रूह को लेते और कुछ ना ले सकते, And it shall come to pass in those days और आखिरी दिनों में ऐसा होगा that I will pour out my Spirit upon all flesh. कि मैं अपनी रूह जो है वो हर फर्द बश पर उंडेलूंगा And your sons and daughters shall prophesy. और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत The करेंगे। first thing he said here when he says he will pour the Spirit upon us और यहाँ पहली चीज जो है बयान की जा रही है कि वो अपनी रूह उंडेलेंगे is that there will be an enabling power making you to prophesy. और यहाँ ये बात हो रही है कि एक ऐसी कुदरत होगी कि वो आपको इस काबिल बनाएगी कि आप नबूवत करें। He said, I will pour my Spirit. और खुदावन फरमाता है कि मैं अपनी रूह उंडेलूंगा। The difference between Christianity और यहाँ जो है मसीहियत के अंदर जो फर्क है and another religion दूसरे मजहबों के साथ, is that another religion
और यहाँ है कि दूसरे मजहब जो हैं did not give them the promise of any spirit. और वो किसी भी रूह का वादा नहीं देते, It is only this kingdom of God. और यही खुदा की बादशाही है जो इस बात का वादा करती It है। is only this Christianity और ये सिर्फ मसीहियत ही है that promise you जो आपसे वादा करती है that these days कि इन दिनों में after Jesus died यीशु मसीह के मरने के बाद and rise from the grave, और कब्र से जिंदा होने के बाद there will be a new order और यहाँ एक नया हुक्म जारी होगा that God want to enter men. कि खुदा जो है वो आदमी के अंदर दाखिल होना Like as चाहता है। Jesus is born into the world, जैसे यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुआ God want to enter men, और इसी तरह खुदा इंसान के अंदर आना चाहता है, men and women. औरतों और मर्दों के God दरमियान, want to enter them. और खुदा उनके अंदर आना चाहता Why है। does He want to enter men? आज वो क्यों जो है लोगों के अंदर दाखिल होना चाहता है? Because before this new covenant, क्योंकि इस नए अहद से पहले men could not keep His commandments. क्योंकि इंसान जो है वो उसके हुक्मों पर नहीं चलता था, Men could not do His work. और आदमी जो है वो उसका काम नहीं कर सकता था। You see, you must understand that the prophets of the Old Testament आप इस बात को समझ रहे होंगे कि पुराने अहदनामे के जो नबी हैं were only prophets to Israel. और वो सिर्फ इस्राएल के नबी थे, They were not prophets to the world. वो पूरी दुनिया के नबी नहीं थे। Isaiah is not sent to the world. यसाया जो है वो दुनिया के लिए ना भेजा गया, All the prophets of the Old Testament, और पुराने अहदनामे के जितने भी नबी हैं none of them left Israel to Pakistan to go and preach. और उन्होंने इस्राएल को ना छोड़ा कि वो पाकिस्तान चले जाएं और They वहां जाकर were मुनादी करें। prophets for only Israel. ये सिर्फ इस्राएल के लिए नबी थे। But God said a time is coming और खुदावंद फरमाता है कि एक वक्त आएगा that I want to save the world. कि मैं दुनिया को बचाना चाहता हूँ, So I will pour my spirit और मैं अपनी रूह जो है वो उंडेलूंगा upon men and women, आदमियों पर और औरतों पर, sons and daughters, बेटों पर और बेटियों पर, and they will begin to prophesy. और वो नबूवत करना शुरू हो They will जाएंगे, move from Jerusalem to Judah. और वो यरूशलेम से जो है यहूदा में जाएंगे। That's why you read in Acts chapter 1 verse 8. इसीलिए आप अमाल के पहले बाब की 8वीं आयत के अंदर It तलावत said, करते and हैं, you shall पढ़ते हैं receive power कि जो है तुम कुदरत को रिसीव करोगे after that the Holy Ghost is come upon you. जब रूह तुम पर नाजिल होगा, And then you will be my witness. और फिर तुम मेरे गवाह ठहरोगे। There is the importance of receiving the Spirit of God. और यहाँ खुदा की रूह को कबूल करने की एक बड़ी अहम बात है, The message of the kingdom is not complete without receiving the Spirit of God. और खुदा के कलाम का जो पैगाम है वो जब तक हम खुदा की बादशाही को कबूल नहीं करते वो मुकम्मल नहीं होता। The message of the kingdom begins with receiving Jesus. और बादशाही का जो पैगाम है वो यीशु मसीह को कबूल करने के साथ मुकम्मल As होता your है, Lord and as your God. अपना खुदावंद मानते हुए। And then the message of the kingdom, there is in the message there is a promise that you are entitled to receive the Spirit. और यहाँ जो बादशाही का जो मैसेज है वो हमें इस बात के बारे में बताता है कि हम जो खुदा की रूह को जो है वो हासिल करेंगे। And so he said in Joel 2:28, इसीलिए खुदावंद का कलाम हमें योएल की दूसरे बाब के and it अंदर shall come to pass afterward ये सिखाता है कि ऐसा होगा that I will pour out my spirit कि मैं अपनी रूह जो है वो उंडेलूंगा upon all flesh, और हर फर्द बशर पर, and your sons and your daughters तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां shall prophesy. नबूवत करेंगे। That is why it is not good to limit women in the church, इसीलिए ये अच्छी बात नहीं औरतों को चर्च के अंदर महदूद कर देना, because the New Testament covenant, the Spirit of God is to rest on women and use them. क्योंकि नए अहदनामे में जब हम देखते हैं तो खुदा का कलाम जो है वो सिखाता है कि रूह जो है औरतों पर भी ठहरता है और उन्हें इस्तेमाल करता है। Your sons and daughters shall prophesy. और खुदा का कलाम बयान करता है तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। Why do they need to prophesy? उन्हें क्यों जरूरत है नबूवत करने की? Because the Christian life is a life of prophecy. क्योंकि एक मसीही जिंदगी नबूवत की जिंदगी You है। cannot be a Christian without talking.
आप जो हैं बोलने के बगैर एक मसीही नहीं बन सकते। For you to receive Jesus Christ, you must open your mouth and talk. और यीशु मसीह को कबूल करने के लिए जरूरी है कि आप अपने मुंह को खोलें और बात करें। You must say, I believe that Jesus died for me. और जरूरी है कि आप कहें मैं ईमान रखता हूँ यीशु मेरी खातिर मरा। You must say, Lord Jesus, come to me. और जरूरी है कि आप कहें खुदावंद मेरे पास आ। For you to carry the power of Jesus, और आपके लिए जरूरी है कि खुदा की कुदरत को रिसीव करने के लिए you must open your mouth. आप अपना मुंह खोलें। So the word of God is in the mouth and heart of men. और खुदा का कलाम जो है वो इंसान के दिल में और उसके मुंह के अंदर है। By the Spirit. रूह के वसीला By से। the Spirit. रूह के वसीला He से। said, and it shall come to pass और खुदा का कलाम सिखाता है ऐसा होगा that I will pour out my Spirit कि मैं अपनी रूह जो है वो उंडेलूंगा upon all flesh, हर फर्दे बशर पर, and your sons और तुम्हारे बेटे and your daughters और तुम्हारी बेटियां shall prophesy. नबूवत करेंगे। That is the first thing mentioned there. यहाँ ये पहली चीज है जो बयान की जा The रही है। life of a Christian is the life of decrees. और एक मसीही की जिंदगी जो है वो ऐलान करने की जिंदगी A है। believer must wake up and speak. और एक ईमानदार जरूरी है कि वो उठे और अपने मुंह से बोले। Brother, can you off your phone? भाई क्या आप अपना फोन बंद कर सकते Off हैं? that phone, please. Off इस it. फोन को बंद कर दीजिए। Don't use phone in church. फोन को जो है इस्तेमाल ना करें। Hallelujah. हालेलुया। Somebody say thank you, कोई Jesus. कहे खुदावंद तेरा शुक्र हो। And it shall come to pass और ऐसा होगा in those days उन दिनों में that I will pour out my Spirit कि मैं अपनी रूह जो है वो उंडेलूंगा upon all flesh, हर फर्दे बशर पर, and your sons and your daughters shall prophesy. और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। There is the power of prophecy. यहाँ एक नबूवत की जो है वो एक कुदरत है। But the Lord said that you must have the Spirit. और इसीलिए खुदावंद का कलाम सिखाता है कि तुम्हारे पास रूह होना चाहिए। Church is a spirit. चर्च जो है वो एक रूह है। The word of God said where 2 or 3 are gathered together. और खुदा का कलाम सिखाता है जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते He हैं। said, there I am in their midst. और खुदा का कलाम सिखाता है कि मैं उनके बीच में हूँ। As we are here now, is in our midst. और जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं वो हमारे दरमियान है। It is this knowledge of His Spirit और यही उसकी रूह का इल्म है that makes you to fear God. कि जो आपको इस काबिल बनाता है कि आप उससे डरें। If you don't know that God is here, अगर आप ये ना जाने कि वो यहाँ मौजूद है maybe because you think that there is no roof here. और आप ये सोचे कि यहाँ कोई छत नहीं। In Matthew 18:18 मत्ती की अंजील उसके 18वें बाब की 8 आयत में or 18 verse 20, और 20वीं आयत में He said, where 2 or 3 are gathered in my name. खुदावंद का कलाम सिखाते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से He इकट्ठे said, there I होंगे am in their midst. मैं उनके दरमियान में हूँ। So He's here with us. वो हमारे साथ है। So when you believe in the Spirit, जब आप रूह पर ईमान रखते when you हैं, believe the Spirit, जब आप रूह पर ईमान रखते हैं that Jesus is here, कि यीशु यहाँ मौजूद है, you will now have to fear Him तो फिर जरूरी है कि आप उससे डरें, because you will know that His presence is here. क्योंकि आपको ये जानना है कि उसकी हुजूरी यहाँ मौजूद है। You relate with God by the Spirit. आप जो है वो खुदा को जो है रूह से तशबीह देते We हैं। live in the Spirit by faith. हम जो है रूह में रहते हैं ईमान के साथ। Once you are a child of God, जब आप खुदा के बच्चे you हैं, have accepted Jesus as your God आपने खुदावंद यीशु को अपना खुदा माना है, or as your Lord and your Savior. अपना नजात दहिंदा और अपना खुदावंद माना है, You are now living in the Spirit, और फिर आप जो है रूह में रहते हैं। but you may not be empowered और आप जो है अभी कुवत में नहीं, if there is no fear of God within you. जब आपकी जिंदगियों के अंदर उसका डर नहीं, When you have fear of जब God, आपकी जिंदगी में उसका खौफ मौजूद होता as है, you act according to His will, जब आप उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, He will grant it to you. तो वो फिर आपको बख्शा जाता है। There is the need for you to understand the move of the Spirit. और यहाँ जरूरी है कि आप रूहुल कुद्स के जो है मूव को समझें। He said, it कि- shall come to pass और खुदा का कलाम सिखाता है ऐसा होगा that I will pour out my Spirit कि मैं अपनी रूह जो है वो उंडेलूंगा upon all flesh, हर फर्दे बशर पर, and your sons and your और daughters तुम्हारे बेटे बेटियां shall prophesy. नबूवत करेंगे। He said, your sons and your daughters, और खुदा का कलाम सिखाता है तुम्हारे बेटे और बेटियां they will begin to speak वो बोलेंगे the word of God. खुदा के कलाम They will को, begin to quote
और वो जो है वो बयान करेंगे the word of God. खुदा के कलाम को। Now, thank God, this Bible is in Urdu language, और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, ये कलाम जो है उर्दू जुबान में है, so everybody can read it. आप सब इसे पढ़ सकते हैं। There is nobody here that cannot read it. यहाँ कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं जो पढ़ नहीं सकता। There is a reason why it is documented for you to read. क्यों ये जो है एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में दिया गया है कि आप इसे पढ़ सकें। It is documented so that you will understand the move of the Spirit of God. ये इसी तरह लिखा गया है कि आप इसको पढ़ सकें और खुदा की रूह को हरकत करते हुए महसूस कर सकें। If you don't hear the word, अगर आप इस कलाम को नहीं सुनेंगे, you cannot speak the word. आप खुदा के कलाम को बयान नहीं कर If you don't सकते। hear the word, अगर आप उसके कलाम को नहीं सुनेंगे, your word will not carry power. तो आपके जो अल्फाज हैं वो कुव्वत को नहीं If लेंगे, you don't put your heart to the word, और फिर आप अपना ध्यान, अपना दिल जो है उसके कलाम पर नहीं रख the पाएंगे, Spirit of Jesus will not come to you. और खुदावंद यीशु की रूह आपके पास नहीं आ Or the पाएगी, Spirit of the word will not come to you. और उसके कलाम की जो रूह है वो आप तक नहीं So पहुंचेगी। there is power in reading the word. और उसके कलाम को पढ़ने के अंदर एक कुव्वत है। Many Christians today don't read the word anymore. और बहुत सारे ऐसे मसीही मौजूद हैं जो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, They just believe that you just dance. और वो बस यकीन रखते हैं कि वो बस झूमें, Just dance for Jesus. यीशु के लिए जो है वो झूमना शुरू Now, it करें। is good to dance for Jesus. ये अच्छी बात है यीशु मसीह के लिए झूमना, But if you are dancing without the word लेकिन अगर आप कलाम के बगैर झूम रहे हैं in your heart, अपने दिल के अंदर, how will he receive you? आप कैसे उसको कबूल करेंगे? Church is spiritual. चर्च जो है वो रूहानी है, That is why God said, I will pour my spirit. इसीलिए खुदावंद सिखाता है कि मैं अपनी रूह डालूंगा, So that they will begin to understand deep things of the kingdom of God. ताकि वो जो है बादशाही की गहरी चीजों को समझ सकें, They will begin to understand me. ताकि वो मुझे समझ सकें। Church is not ordinary. चर्च जो है वो कोई आम नहीं। One day, एक दिन one of my ushers, एक जो है मेरे like these people ushering Okay. people to sit down. ओके इंतजामिया के में से कोई एक शख्स, They were also counting among people counting money in the church. और वो जो है चर्च के अंदर जो है पैसे काउंट कर रहा था, गिन रहा था। So she stole, while she was counting money, जब वो पैसे गिन रहा था, she stole 2,000 naira. और उसने जो है 2000 नायरा जो है वो चुरा So लिए। let's just say rupees. She stole 2,000 rupees ऐसे कह लें कि 2000 रुपए, and put it in her bra. You know, she put it inside her. और उसने जो है वो अपने जो है कपड़ों के अंदर उसे छुपा लिया। I don't know, Pakistan women, Nigerian women can hide things here and hide things here. और जो है उन्होंने जो है अपने कपड़ों के अंदर इसे छुपा लिया, So their front can be plenty like this, but there are things hidden inside. और इसी तरह जो है उन्होंने किया और पैसों को छुपा लिया, So she hid 2,000 rupees और उन्होंने 2000 जो है वो छुपा लिए, and she carried it home और उन्हें वो घर ले गए, and she cooked special food और उन्होंने क्या किया, अच्छा खाना पकाया, and she ate it with her children. और उन्होंने अपने बच्चों के साथ खाया। You know what happened to her? आप जानते हैं कि उसके साथ She क्या हुआ? said from when she did that, और उसने कहा कि जब उसने ये किया, that a spirit was coming to her with white and white in her dream. और उसके ख्वाब के अंदर एक रूह आई I was flogging her. और उसे उस रूह ने मारा Go and return the money. कि जा और पैसे वापस कर दे। She said at first he thought it was just a bad dream. और उसने पहले ये सोचा कि शायद कोई बुरा ख्वाब है, She will see angels come with white and white. और उसने देखा कि जो फरिश्ते हैं वो सफेद जो हैं वो नमूदार हो रहे They will हैं, say you stole from God. और उन्होंने कहा कि तूने खुदा के हुजूर जो है वो चोरी की है, They say go and return the money. Go and जा tell, और जाकर पैसे वापस कर दे, go and tell Pastor Ibi. जा और जाकर पास्टर ईबी को बता। You know what she said? और आपको पता है उसने क्या कहा? She said if I tell Pastor Ibi, he will use me to preach. और उसने कहा कि अगर मैं पास्टर ईबी को बताऊंगी तो वो जो है मुझे जो है कलाम सुनाते हुए बयान She करेंगे, said I will not tell him. और उसने कहा कि मैं उनको नहीं बताऊंगी, So she refused to say it. और उसने जो है कहने से इनकार कर The दिया, angels were still going inside her dream और जो है वो फरिश्ते उसके ख्वाब में जाते रहे and they were flogging her. और उसे मारते रहे। This is real life experience. So कैसा ये तजुर्बा है? she started to fall sick. और जो है वो बीमार होना शुरू हो गई, It's so surprising. और ये बहुत हैरान कुन था। She came to church and confessed her sins. और वो चर्च आई और फिर उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, It appears that God will not listen to her और ऐसा लगा जैसे खुदा उसकी दुआ को नहीं सुन रहा था, because she was still being flogged in the dream. क्योंकि वो ख्वाब के अंदर जो है वो उसे मारा जा रहा था। So one day एक दिन she forced herself
और उसने जो है She वो forced herself उसने अपने आप को जो है इस कायल किया। and told me, Pastor, उसने कहा पास्टर I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, Please don't use it to preach. और लेकिन इसे जरूर कलाम ना सुनाइएगा Don't give example with it. और इसकी कोई मिसाल ना दे दीजिएगा। I said, what do you mean by that? और मैंने कहा तेरा इससे क्या मतलब He है? said, when you preach, you give a lot of examples. और उसने कहा कि जब आप कलाम सुनाते हैं आप बहुत ज्यादा मिसालें देते And हैं I don't want to be embarrassed. और मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती। I said, this is the problem of many Christians. और मैंने कहा यही ज्यादातर मसीहियों का मसला है, Because you don't understand the word of God. क्योंकि आप खुदा की कलाम को नहीं समझते You don't know that Genesis to Revelation, God wrote about many people. और आप ये नहीं समझते कि पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक खुदावंद ने बहुत सारे लोगों के बारे में जो है बयान किया है। How did we know that Adam and Eve ate the fruit? और हमें कैसे पता चलता कि आदम और हवा ने फल खाया? How did we know that Cain killed Abel? और हमें जो है कैसे पता चलता कि काइन ने हाबिल को कत्ल किया? How did we know that Lot's wife turned back and looked at the destruction of Sodom and Gomorrah and turned into a salt? और फिर हम सदोम और अमूरा की जो है तबाही को कैसे जान सकते थे? How did we know that Abraham lied that his wife is his sister? और हम कैसे ये जान सकते कि अब्राहम ने झूठ बोला कि उसकी बीवी जो है उसकी बहन है? How did we know that Samson had a weakness with women? और हम कैसे जान सकते थे कि समसून की कमजोरी है औरतें? God likes to give example. और खुदा जो है पसंद करता है मिसालें देना। So in the church when we preach, और चर्च के अंदर जब हम कलाम को बयान करते the हैं, preacher must give example. और जरूरी है कि एक जो बयान करने वाला है वो मिसालें दे, He may not call your name, अपना नाम ना ले। but there are true stories. ये सच्ची कहानियां हैं। On one hand, if you look at the Bible, और इसी तरह जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, it looks like a storybook. और ये भी एक कहानी की किताब की तरह लगता है, Because there's just a story from Genesis chapter 1. Story. क्योंकि पैदाइश के पहले बाप से लेके कहानियां How कहानियां, Moses was born, और कैसे मूसा पैदा हुआ, how people rose against him and they died. और कैसे जो है लोग बढ़े मरे, सब चीजें। I went to the mountain to read the 10 commandments. और इसी तरह कैसे मूसा जो है वो पहाड़ पर गया, Just उसने look- 10 हुक्म If you लिखे। look at the Bible, Genesis to Revelation, और जब हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में, on one hand they look like a storybook, और एक तरफ ये एक कहानी की सूरत में हमें दिखती है, but there is the spirit inside the story. लेकिन इस कहानी के अंदर भी एक रूह मौजूद The है, spirit is using the history, और ये रूह जो है वो इस तारीख को इस्तेमाल करती the है, history of Adam and Eve, और आदम और हवा की तारीख को, the history of how God created the world, और इस तारीख को कि कैसे खुदा ने दुनिया को बनाया, and the history of the first covenant that God made with Abraham. और पहले अहद की तारीख को जिसे खुदा ने उसके अब्राहम के साथ बांधा। That is why you read in Genesis 14 इसीलिए आप जो है पैदाइश उसके 14वें बाब को में पढ़ते हैं that Melchizedek appeared to Abraham कि हम देखते हैं कि अब्राहम के पास with bread and wine एक फरिश्ता जो है नमूदार हुआ and blessed him. और उसे बरकत दी, The Bible uses the word bread and wine. और खुदा का कलाम जो है वो ब्रेड और जो है शीरे के बारे में बयान करता Abraham was है, the first person to take Holy Communion in the और Bible. अब्राहम जो है वो पहला शख्स है खुदा के कलाम में जिसने शायरबानी ली। In Genesis 14. पैदाइश उसके 14वें बाब के अंदर, Bread and wine. और शीरा और रोटी, And then God stopped them और खुदा ने उन्हें रोका, because the era of the bread and wine has not really come. और क्योंकि वो जो है वो वक्त अभी तक पहुंचा ना था, So God now introduced the law, और खुदा ने अपना जो है अपने हुक्म जो है वो the मुतारिफ 10 करवाए, commandments, the 10 commandments. 10 हुक्मों को मुतारिफ करवाया, Then he allowed men to see if they can obey him. और उसने जो है वो उन्हें इजाजत उन्हें वो हुक्म दिए कि वो उसकी पैरवी करें। And men could not obey him. Men, Human being could not obey him. और जो इंसान है वो उसे जो है उसके हुक्म नहीं मान सकता था, So he brought the revelation of grace, और वो जो है फिर फजल का जो मुकाशफा है वो ले आया, which is the kingdom of God. जो खुदा की बादशाही है, The grace of God. खुदा का फजल है, The grace of God is the power of God. खुदा का फजल जो है वो उसकी कुदरत है। Anytime you hear about grace of God, जब भी आप खुदा के फजल के बारे में
सीखते If हैं, you want to explain it to a new Christian, जब आप एक नए मसीही को इसके बारे में बताते you हैं, will say grace means unmerited favor. और जब आप फजल के बारे में बयान करते हैं तो आप कहते हैं कि एक जो है रहम है, Meaning Jesus died for you, you didn't pay anything. कि जैसे कि यीशु मसीह आपकी खातिर हुआ और आपको कुछ भी जो है वो भरना ना पड़ा। But the full revelation of grace और लेकिन जो इस फजल का पूरा मुकाशफा is है the power of God upon वो you. खुदा की कुदरत है आपके That ऊपर। is why Hebrews 4:16. इसीलिए इब्रानियों उसका चौथा बाब और उसकी छठी He आयत said, में let us देखते हैं। therefore come boldly to the throne of grace. Hebrews 4:16. ओके। Let us come to the throne Throne of grace, और आए हम जो फजल के तख्त के पास आते that हैं we may obtain mercy कि हम उसके जो है फजल को ले सके and find grace to help us. और उसके रहम और उसके फजल को ले सके Grace to help us और उसके फजल को ले सके कि वो हमारी मदद in करे time of our need. जब हमें जरूरत होती है। Hebrews 4:16. और इब्रानियों उसके चौथे बाब की छठी आयत The में stories of the Bible खुदा के कलाम की कहानियां are very many. बहुत ज्यादा हैं They are not really stories. और वो सिर्फ कहानियां ही नहीं They are used by the Spirit of God और वो खुदा की रूह की तरफ से इस्तेमाल to हुई हैं bring the knowledge and the history of the power of God to you. ताकि वो खुदा की कुदरत और उसकी तारीख को आपके दरमियान ला सके That there is a God that began with the people of Israel. कि वहाँ एक खुदा है जो इस्राएल के लोगों के साथ है। That is why till today, if you like, gang up, because you nothing you can do to them. और इसीलिए आज आप अगर उनसे लड़ना भी चाहें तो कुछ भी उनके खिलाफ नहीं कर सकते। A very strange covenant is with them. और एक बहुत ही अजीब अहद उनके साथ बांधा गया There was है a God that began with Abraham. और वो खुदा जो अब्राहम के साथ है He appeared to him as a spirit. और वो रूह में उसके सामने आया Melchizedek is a spirit. और एक रूह जो है उसके सामने आया Not having father, not having mother. और ना कोई बाप ना कोई माँ। Abraham said, who is this? अब्राहम ने कहा ये कौन He है said, I'm Melchizedek. और उसने कहा कि मैं जो है वो मुल्क के Melchizedek. No, don't worry. Okay. Continue. Okay, okay. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। And the covenant began to move और अहद जो है वो बढ़ता शुरू हो to गया Abraham, अब्राहम से, Isaac, इसहाक से, and Jacob. याकूब से। The Spirit of God खुदा की रूह was upon Abraham अब्राहम पर थी and transferred the covenant to Isaac, और उसको जो है उस अहद को उसने आगे इसहाक पर किया to Jacob, और फिर वहां से याकूब and पर Jacob became Israel. और याकूब जो है वो फिर इसराइल बन And गया Israel became a nation. और इसराइल जो है वो एक कौम बन गई And the Spirit of God said, और खुदा की रूह ने कहा I will reveal myself कि मैं अपने आप को जाहिर करूंगा through the seed of Abraham. और अब्राहम की जो है नस्ल के जरिए से And when I reveal myself, और जब मैं अपने आप को जाहिर करूंगा I will come by a covenant और मैं एक अहद के जरिए से आऊंगा whereby anyone who call me जो कोई मुझे बुलाएगा will be opportune to receive my spirit. और वो इस काबिल होगा कि मेरी रूह को हासिल कर And their सके life will not be the same again. और उसकी जो जिंदगी है वो वैसी नहीं रहेगी। So the sister said, why that I should not use her name to preach. और इसी तरह उस बहन ने कहा कि क्यों जो है इनका नाम इस्तेमाल किया जा I रहा है said, कि woman, कलाम सुनाए। if I need to use your case to teach somebody, I will use it. और मैंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी कि तुम्हारा जो है कहानी या नाम लेकर मैं दूसरों को सिखाऊं तो मैं करूंगा। I don't have to call your name. मुझे आपके नाम लेने की भी जरूरत But नहीं। when they wrote the Bible, God was calling all the people who did bad. He was writing their name. और जब कलाम को लिखा जा रहा तो जिसने जो किया उसका नाम जो है Everybody लिखा that गया did bad, God was calling their name. और जिस किसी ने भी बुरा किया खुदा ने उसका भी नाम लिखा। How did you know about Absalom? आप अभी सुलूम के बारे में कैसे जान सकते That थे betrayed his father, कि उसने अपने बाप को जो है धोखा दिया King David. दाऊद को। How did you know about Judas Iscariot? आप यहूदा इस्करियोती के बारे में कैसे जान How सकते did थे you know about Ananias and Sapphira that came to church and deceived Peter? और आप हननिया और सफीरा के बारे में कैसे जान सकते थे? This is because the word of God wrote their name there. क्योंकि खुदा के रूह ने जो है उनके नाम लिखे। That this man and his wife were very bad, trickish people. क्योंकि ये मर्द और औरत जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो खेलने वाले They came to लोग हैं deceive Peter and they died. और वो जो है पतरस के पास आए और वहाँ जो है वो मर गए। So it is written there so that when you read it, you will have warning that church is a spirit. और इसीलिए ये वहाँ लिखा गया है कि आपके लिए नसीहत
अवगत हो कि चर्च जो है वो एक रूह है। Church is not just spiritual, church is a spirit. चर्च जो है वो एक रूहानियत है। The spirit of God is not only inside church, church is a spirit. चर्च खुदा का रूह जो है वो सिर्फ चर्च के अंदर ही नहीं बल्कि चर्च ही खुदा का रूह है। If you misbehave inside church, और अगर चर्च के अंदर आप जो है बुरा रवैया इख्तियार करते you हैं can carry a curse. और फिर आप एक लानत कमा सकते हैं। But God does not want to curse you. और इसीलिए खुदा नहीं चाहता कि वो आप पर जो है लानत करे, He came to bless you. वो आपको बरकत देने आया। Hallelujah. कहे हालेलुया। There was a lady वहाँ एक औरत थी in my church in Nigeria. इनके चर्च के अंदर, She was with me for 8 years, वो 8 साल से मेरे साथ थी, growing in the ministry. खिदमत के अंदर बढ़ती। And then one day, एक दिन she committed some kind of fornication with a brother in the church. और उसने जो है चर्च के अंदर जो है कुछ जो है बुरे काम किए, ज़नाकारी। And I told them that stop this your relationship. और मैंने उसे कहा कि इस रिश्ते को जो है यहीं रोक दो। This type of relationship, I don't like it. और इस तरह के जो ताल्लुकात है मुझे ये पसंद नहीं। If you want to marry, I've given you people 1 month to marry. अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मैं आपको 1 महीना देता हूँ। Now it has turned to 2 years. और यहाँ 2 साल हैं You went to stay inside the brother's house, और तुम जो है उसके घर में रह रहे and he हो has not properly married you. और आपने जो है शादी भी नहीं की। So the sister thought that it is an ordinary man that is talking to him. और उसने ऐसा सोचा कि कोई आम शख्स जो है उससे बात कर He रहा है। didn't know that church is a spirit. उसने ये नहीं जाना कि चर्च जो है वो रूह है And the servants of God are used by God to lead you, to obey और God. खुदा के खादिम जो है वो इस्तेमाल होते हैं कि आपको लीड करें खुदा की तरफ से। She got angry with me और वो मुझसे जो है रंजीदा हो गई and told the man they should not come to the church again. और उसने उस आदमी से कहा कि मैं अब दोबारा चर्च नहीं आऊंगी। And let them live their life the way they want to live their life. और इसी तरह जिस तरह ये जिंदगी गुजारना चाहते हैं वैसे गुजार लें। I called her, I said, sister, you cannot do that. और मैंने कहा कि बहन तू ऐसा नहीं कर सकती। I said, before you and this brother enter courtship, before you and the brother enter courtship, that's a relationship Okay. to marry. और आप जो है इस शादी के बंधन में बनने से पहले I was the one that approved it that in 1 month's time, 2 of you should go and marry. और मैं ही हूँ जो बयान कर रहा हूँ कि 1 महीना है आप शादी कर सकते हैं। I said, don't go to the brother's house and start staying in his house. और मैंने कहा कि उस भाई के घर जाकर रहना बंद कर दो। And I blessed them in front of the church. और फिर मैं जो है उनको चर्च के सामने बरकत देता। Go and plan your marriage in 1 more time and come and marry. जाएं और अपने जाकर शादी के बारे में प्लान करें। They turned it to 2 years, staying inside the same house. और उसी घर में वो 2 साल रहते रहे। So the sister got angry. और वो बहन जो है वो गुस्सा हो गई That the man of God said, what you people are doing is bad. और उसने कहा कि ये जो काम तुम लोग कर रहे हो ये बुरा है। So she stopped coming to the church. और उसने चर्च आना ही बंद When कर I दिया। sent people to call her, और जब मैंने लोगों को भेजा कि उसे she बुलाएं started to insult me. और उसने जो है मेरी बेइज्जती करना शुरू She कर started दी। to insult the church people through और phone. उसने जो है चर्च के लोगों के सामने जो है फोन के जरिए से मेरी बेइज्जती करना शुरू कर After दी। like 1 month, 1 महीने के I बाद told our church people, I said, leave her alone. मैंने अपने चर्च के लोगों को उसे छोड़ दे। She will know that church is a spirit. वो जान जाएगी कि चर्च जो है वो रूह है। You know what happened? आप जानते हैं कि क्या हुआ? She left the church like 8 months. और उसने 8 महीनों से जो चर्च को छोड़ दिया हुआ She था started to sick वो बीमार होना शुरू हो and she गई died. और फिर वो मर गई। It's not like I'm happy that she died. ये नहीं कि मैं उसके मरने से खुश था। Is it today that people are dying inside church when they do evil? आज बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में गलत काम करते हैं और मर रहे हैं। What killed Ananias and Sapphira? Is it not inside church? किसने जो है वो हननी और सफीरा को मारा? Because people think that church is just ordinary place. और कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि चर्च जो है बस एक आम सी So जगह they है come and they lie to the pastor. और वो आते हैं और हादिमों से झूठ बोलते And हैं। when the man of God gives you instruction, you disobey. और जब खुदा का हादिम उन्हें नसीहत करता है तो वो उसकी जो है नाफरमानी You करते हैं। can vex the spirit of God inside this place now. और आप जो है खुदा की रूह को इस जगह देखते हैं And the spirit of God will be angry with you. और अगर आप ऐसा करें तो खुदा का रूह जो है वो आपसे रंजीदा हो He सकता can है। come to you and strike you. वो आ सकता है और आपको जो है वो मार सकता है। That's why we need to teach you इसीलिए जरूरत है कि आपको सिखाया जाए that church is a spirit. कि चर्च एक रूह है God wants you to have the spirit और खुदा चाहता है कि आपके पास ये so रूह हो that you understand the spiritual realm. ताकि आप रूहानी आलम को सीख You don't सकें। use your brain and your mind to think that it's just where people gather and sing. अपने ज़हन और अपनी सोच का इस्तेमाल करें कि बस आए और गीत गाए और बस ठीक है। There is an angel here यहाँ एक फरिश्ता मौजूद है with a sword.
और जो एक तलवार के साथ, That sword is for your blessing. और ये जो आपकी बरकत के लिए है, That sword is to strike your enemy. और ये आपके दुश्मनों को हलाक करने के लिए But है। if you vex the spirit और अगर आप इस रूह को रंजीदा करते with हैं, a sin against the church, गुनाह करके चर्च के खिलाफ, the spirit, that same angel can strike you. और यही सेम रूह जो है वो आपको हलाक कर सकती है, मार सकती है। That is the power that struck Ananias and Sapphira in Acts chapter 5. और यही वो रूह है जिसने हननी और सफीरा को हलाक किया। One day, एक दिन Paul was preaching. पलूस जो है वो कलाम बयान कर रहा I think था, in Acts chapter 13. और मेरे ख्याल से ये जो है अमाल की किताब के He अंदर was 13वें preaching बाब to के a अंदर governor. वो एक जो है एक हुकूमत वाले से जो है कलाम बयान कर And रहा था, another man, a magician, और एक जादूगर जो है came to disturb Paul. और पलूस को जो है वो डिस्टर्ब करने के लिए आया, And Paul turned to the man. और पलूस जो है वो उस आदमी की तरफ मुड़ा, He said, be blind for a season. और उसने कहा कि एक लम्हे एक अरसे के लिए तू है अंधा हो जा। Immediately, the magician became blind. और उसी लम्हे जो वो जादूगर था वो अंधा हो गया। Church is a spirit. चर्च जो है वो एक रूह है, There is a sword of blessing in the church. और चर्च के अंदर एक बरकत मौजूद है, There is a sword of judgment inside the church. और चर्च के अंदर एक जो है वो अदालत की तलवार है। So if you are here अगर आप आज यहाँ मौजूद and हैं you are doing bad things inside the और church, आप चर्च के अंदर बुरे काम कर रहे हैं, maybe you steal, हो सकता है आप चोरी कर maybe रहे you हो, speak against the church, हो सकता है आप चर्च के खिलाफ बात कर रहे हो, maybe you speak against the man of God that God is using here. हो सकता है कि आप खुदा के हाथों के खिलाफ बात करें जिन्हें खुदा इस्तेमाल कर रहा You है। don't know what you are playing with. आप नहीं जानते कि You आप will किसके just साथ खेल रहे destroy हैं, your life. आप अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे Withdraw हैं, your hand from any bad thing inside this place. और अपनी इन बुरे कामों से अपने हाथों को पीछे कर लें, Relate with the Spirit of God खुदा की रूह से रिश्ते कायम and करें, get the blessing, not the curse. और उस बरकत को लें ना कि उस लानत को, Get the power, not the judgment. और उस कुव्वत को लें ना कि अदालत को। So I told the sister, और मैंने फिर उस बहन से कहा I will preach with your example. कि मैं तेरी ही मिसाल के साथ कलाम बयान I said, you will करूंगा। not tell me what to do inside church. मैंने कहा तू मुझे ना बता कि मुझे चर्च में क्या करना है, I'm sent as a man of God. मैं खुदा के खादिम के तौर पर भेजा A गया man हूँ, of God does not fear his members. और खुदा का खादिम जो है वो अपने लोगों से, चर्च के लोगों से नहीं If डरता। I am afraid of my members, अगर मैं अपने जो है मेंबरों से डर जाऊंगा, the same angel inside the church will strike the pastor. और इसी तरह वही जो फरिश्ता है चर्च के अंदर मौजूद है वो खादिम को भी जो है That you वो are not my servant. हलाक करेगा कि तू मेरा You are not my खादिम servant. नहीं, कि तू मेरा खादिम नहीं, You are pleasing the people. तू लोगों को खुश कर रहा When you है, see them do wrong, you don't tell them. और जब तू उनको गलत करते देख रहा है तो तू उनको नहीं बता रहा। So even the Spirit of God can kill the pastor. और इसी तरह खुदा की रूह जो है वो पास्टर को भी हलाक कर That सकती is है। why Pastor Eli died inside the इसी church. तरह जो खादिम एली है वो भी हलाक हुआ। That is why Eli, 2 sons, they died inside the इसी church. तरह एली के 2 बेटे जो है वो भी हैकल के अंदर जो है वो मर गए। They were priests, वो भी जो है काहिन थे, but they sinned against the Spirit लेकिन उन्होंने गुनाह किया and they died inside the church. और वो चर्च के अंदर ही मर That गए। is how the 2 sons of Aaron, इसी तरह हारून के 2 बेटे Abihu and the 2 sons of Aaron. नदब और अबीहू जो Nadab, है, very good. The 2 sons of Aaron, हारून के 2 बेटे, they sinned against God. उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह They किया, went to do sacrifice और वो जो है कुर्बानी करने के लिए when गए, they were not authorized to do so. और जिसके लिए वो चुने नहीं गए थे करने And के लिए, fire fall from heaven and burn them dead और inside वो the जो church. आग आसमान से आई उसने उन्हें भस्म कर दिया। That is how Judas Iscariot also died. इसी तरह ही यहूदा इस्करियोती भी मरा After he betrayed Jesus, जब उसने यीशु मसीह को धोखा दिया, the Bible says his blood was gushed out. और हम देखते हैं कि उसका जो दिल है वो आंतरियां जो है वो फट In गई। Nigeria, we say in belly burst. Oof. उसकी आंतरियां जो है वो फट गई, His blood was gushed out. और वो जो है फट गई, He fell down and died वो गिरा और मर गया, because he betrayed his master. क्योंकि उसने अपने जो है There are people मास्टर को in बेच church दिया। that betray the pastors. आज बहुत से लोग हैं जो अपने खादमीन को धोखा देते There are हैं। people in church that speak against man of God inside church. आज यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने खादमों के खिलाफ बात करते हैं। Church is a spirit. चर्च एक रूह है, God wants you to have his spirit खुदा चाहता है कि आपके पास ये रूह मौजूद and हो, relate with him in the spirit और रूह से अपने आप को वहाँ जोड़ें, and get the blessing of the spirit, और उस रूह की बरकतों को लें, not the judgment of the spirit. और रूह की अदालत को ना लें। You know, let me tell you something.
आए मैं आपको कुछ बताना If चाहता you हूँ। give birth to a little child, अगर आप एक छोटे से बच्चे को जन्म देते हैं an infant, small baby, और एक छोटे बच्चे को, an infant, that's small, very small baby, 1 month old. इस छोटे बच्चे को 1 महीने का लगभग बच्चा हो, The baby, और ये बच्चा, why you papa is shaking the baby like this? आप क्यों इस बच्चे को इस तरह झूलते हैं? The baby does not know that you that is shaking the baby, और आप जो इस बच्चे को हिला रहे हैं, you have good side and you have bad side. और आपका जो है अच्छा नजरिया है, बुरा नजरिया है। What I mean by that, इससे क्या मुराद है as मेरी? you are shaking the baby like this, जब आप इस तरह बच्चे को हिलाते हैं, the baby will think that papa is very good, he cannot flog somebody, he cannot flog somebody. और इसी तरह वो बच्चा सोचे कि पापा बहुत अच्छे हैं, पापा नहीं मार सकते, But डांट नहीं as the सकते। baby is growing up, और जब वही बच्चा बड़ा होता है, one day the baby when the baby do something wrong, papa will do और जब वो बच्चा बड़ा होता है और पापा उसको मारते हैं और वो बच्चा कहता है कि हो गया है। See not this man that has been carrying me ever since, और ये वही नहीं जो मुझे झूले देता था, so he can flog. और ये अभी मुझे मार रहा है। That is how our God is. और इसी तरह हमारा खुदा भी है। You just know his love. और आप सिर्फ उसकी मोहब्बत को समझिए, Invite you to his kingdom. और वो आपको अपनी बादशाही में You दावत begin to देता worship है। him. उसकी जो है तारीफ You करें, know about his blessings. आप उसकी बरकतों के बारे में जाने, You don't know that he's also a dangerous God. और आपको ये नहीं जानते कि वो एक खतरनाक खुदा भी है। If you sin inside the church, अगर आप चर्च के अंदर गुनाह करते हैं, he can strike you down. और वो आपको जो है वो हलाक कर सकता That is है। why you must be afraid when you are in इसीलिए church. जरूरी है कि जब आप चर्च के अंदर मौजूद हैं तो खौफ ज़दा हो। When your man of God give you instruction, obey him. जब आपका हादिम आपको नसीहत करता है तो उसकी ताबेदारी करें। What killed Ananias and Sapphira? और हननी और सफीरा को किस चीज ने हलाक किया? Very simple mistake. बहुत ही सादा सी They गलती, just lied. और उन्होंने जो है इसको They गुनाह, just lied to Peter. और उन्होंने पतरस से झूठ बोला, It is something that they shouldn't have lied. और इसे वो ऐसी चीज जिसको वो बहुत छोटी सी समझ रहे They थे, sold their land, और उन्होंने जो है उस जमीन को बेचा, maybe for 1 lakh. मिसाल के तौर पर 1 लाख, Now they divided the money to 50,000. और उन्होंने जो है वो 50,000 में इसको तकसीम किया, And then they carried the 50,000 to Peter. और वो 50,000 पतरस के पास They ले, said, Peter, we sold all our land for 50,000. और उन्होंने कहा कि हमने अपनी सारी जमीन जो है 50,000 में बेच दी, So we want to give it to God. और हम इसे खुदा को देना चाहते So हैं। this, if you read Acts chapter 5, और जब आप अमाल 5वें बाब का मुतालिया करते the हैं, spirit of the Lord was vexed inside Peter और खुदा का जो रूह है वो पतरस के अंदर था, and opened the eyes of Peter और पतरस की आंखें खुली that these people are lying. कि ये लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं। Then Peter asked them a question. और पतरस ने उनसे एक सवाल पूछा, Why are you tempted to lie to the Holy Spirit? तुम जो है क्यों आजमाए गए कि रूह से झूठ That means बोलो? when you lie to your pastor, you can lie to the Holy Spirit. इसी तरह जब आप अपने खादिम से झूठ बोलते हैं तो आप खुदा की रूह से झूठ बोलते Then हैं। Peter asked them a question. और पतरस ने उनसे एक सवाल पूछा, He said, when the money, the land was not sold, is it not your own? और क्या ये जमीन जो बेची गई तेरी अपनी ना थी? When you sold it, is the money not your own? क्या जब तूने बेचकर ये पैसे लिए तेरे ना थे? You should have just said, we sold it for 1 lakh, but it's 50,000 we can give to God. Hallelujah. और तूने कहा ये 50 लाख की बिकी और हम 50 जो है वो खुदा को दे दें। What is the reason for lying? क्या वजह है झूठ बोलने की? And then Peter said to them, you have not lied to man, you have lied to God. और पतरस ने फिर उन्हें कहा कि तूने इंसान से झूठ नहीं बोला, तूने खुदा से झूठ बोला And है। immediately they dropped dead. They fell down inside church and died. और वो चर्च के अंदर घिर गए और मर गए। Then there was no civilization. Take note. Then there was no civilization. और यहाँ फिर जो है कोई बचाव नहीं, There was no development. और यहाँ फिर कोई जो है वो बहाली नहीं। You may think that that same thing is not happening now. और आप सोच रहे होंगे कि अब इस तरह की चीजें नहीं होती। You see, if you sin here, अगर आप देखें, अगर आप यहाँ गुनाह करते हैं, God knows that if He strike you down here, और खुदा जानता है कि अगर वो यहाँ आपको हलाक करे, police will come and arrest pastor. पुलिस जो है वो आकर पास्टर को He अरेस्ट कर will ले, follow you to your house और वो आपका जो है अपने घर ले जाए, and strike you inside your house. और आपको अपने घर हलाक करे। Fear this God. इस खुदा से डरें। But in the time of Peter, लेकिन पतरस के दौर में, because there was no civilization, और वहाँ इस तरह का जो है वो No सिस्टम नहीं government. था, गवर्नमेंट नहीं थी, He strike them down inside the church. और उसने खुदा के रूह ने उन्हें वहीं हलाक कर दिया। Church is a spirit. चर्च जो है वो एक रूह है। Be
afraid of इससे God. खुदा से डरें। The Spirit of God can kill. खुदा का रूह जो है वो हलाक कर The सकता है। Spirit of Jesus can bless. खुदा का रूह जो है वो बरकत दे So सकता है। when you are in this church, इसीलिए जब आप इस चर्च के अंदर serve Him with your heart. अपने दिल से खिदमत करें, It is His will to bless you. क्योंकि यही वो तरीका है जो आपको बरकत बनाता है। Don't do evil. गुनाह ना करें, Don't do evil. बदी ना करें। Open your Bible अपने जो है कलाम मुक़द्दस को खोलें, to the Acts chapter 5. अमाल की किताब को Everybody open it and look at it. सभी जो है इसको खोलें। Acts chapter 5 अमाल जो है from verse 1. 5वें बाब की पहली आयत में Acts से, chapter 5 from verse 1. अमाल 5वां बाब और उसकी पहली आयत से। Now read it from verse 1 to 6 in Urdu. और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी और जब बेची गई तो तेरे एख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। Read 7, 8 and 9. और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी उस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद की रूह को आजमाने के लिए एका किया? तेरे दिल देख, तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और इसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शोहर के पास दफन कर दिया। Read verse 10. Yes, I did. Shout hallelujah. कहे हालेलुया। I just decided to read it for you so that you will hear with your ear. मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ना चाहता था कि आप अपने कानों से सुने। Because as I'm talking, I've said many things. और जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने बहुत सारी बातें कही हैं। You see, as I'm speaking by the Spirit, जैसे कि मैं रूह से बात कर रहा हूँ it's not all the time I'll just go and just be reading all the portion. और ये इस तरह नहीं कि सारा कुछ जो है वो मैं Because if I'm going always to read all the portion, क्योंकि मैं बार बार अगर पढ़ने जाऊंगा we will turn it to a reading service. और ये एक बहुत ज्यादा वक्त। I came to speak to you और आज मैं यहाँ आया हूँ कि आपसे बात by करूँ the Spirit of God, रूहुल कुद्स के वसीला से, the mind of God. खुदा के जो है वो ज़हन के वसीला से। So I'm telling you deep things और मैं आपको गहरी बातें बता रहा हूँ that don't see this place that you are as if the Spirit of God is not here. और इस जगह को ऐसे ना देखे कि खुदा का रूह यहाँ मौजूद नहीं। So I now told that lady I will preach and I will make my example. और मैंने कहा कि मैं बयान करूंगा खुदा के कलाम को और अपनी मिसाल। So one day I was preaching, और जब मैं बयान कर रहा था खुदा and के as कलाम को, I'm led, और जब मैं वहाँ मौजूद था, I now said, please let me warn all the ushers in this church, those who are counting money, और मैंने कहा वो सारे लोग जो पैसे गिन रहे हैं, don't steal. पैसे चोरी ना करें। If you steal, अगर आप पैसे चुराएंगे it can lead to spiritual. God will be angry with you. He can strike you. और खुदा जो है आपसे रंजीदा होगा और फिर वो आपको जो है वो इस बारे में डांटेगा। Don't think that as you are counting the money, और ये ना सोचिए कि आप पैसे गिन रहे हैं that the money that people gave, God did not receive it. और वो पैसे जो खुदा को देते हैं खुदा उसको कबूल नहीं करता। Church is a spirit. चर्च जो है वो एक रूह है। As you give like this, आप जब ऐसे देते हैं heaven has received it. और आसमान जो है वो इसको लेता है। So the church will now count it चर्च जो है फिर इसको जो है गिनता है and use it for the work of और God. इसे खुदा के कलाम के लिए जो है इस्तेमाल करता है। Even the pastor, if he steals it, पास्टर जो है अगर वो इसे ले, it is very difficult for a pastor to steal though, पास्टर के लिए बहुत मुश्किल है चोरी करना, as far as he use that money for anything that has to do with the work of God. क्योंकि वो इस पैसे को किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं खुदा के कलाम के And लिए, if the pastor, काम के and लिए। if the pastor does not have a job, और अगर उस पासवान की नौकरी नहीं he feeds from the church. और वो फिर चर्च से ही जो है वो अपना घराना चलाता है। I think that if I have not eaten since 1 week, I cannot be talking like this. और अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक हफ्ते से खाना ना खाऊं तो इस तरह बात ना कर सकूं। Somebody has to feed me.
इसीलिए जरूरी है कि कोई मुझे जो है वो खिलाए. Either I feed myself or church member feed me or something, and something must feed me. मैं खुद या अपने आप को खिलाऊं या चर्च के लोग मुझे खिलाएं या कोई. So it is very difficult for a pastor to use church money and God will judge him. और ये बहुत मुश्किल बात है कि चर्च का पासबान जो है वो पैसे को As ले far और as it's जो है वो using it for अदालत the में work आए. of God. As far as it's using it for the work of God. जब तक कि आप खुदा के कलाम के लिए उसे इस्तेमाल, खुदा के काम के लिए इस्तेमाल So some people think that pastors steal money कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि पासबान जो है वो पैसे चुराते हैं, because the pastor will say use this money to do this. क्योंकि खुदा के खादिम जो है वो कहते हैं इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे काम करने So के they लिए. themselves, when they are counting the money, they will now steal some and put inside. और इसी तरह जो है वो कुछ लोग जो है वो पैसे गिनते हुए जो है वो पैसे को चुरा लेते हैं और अपने बस इधर कपड़ों में जेबों में रख लेते हैं They hide money inside beds. और वो पैसों को छुपाते हैं They do like this. और इसी तरह वो छुपा लेते हैं. They stole God's money. वो खुदा के पैसों को They चुराते are हैं not afraid. और वो डरते भी नहीं. They say people came to gather and drop money. और वो कहते हैं कि लोग जो है इकट्ठे हों और पैसे रख दें. If me and you gathered in any event center और अगर मैं और आप किसी भी जो है वो जगह पर दाखिल होते हैं and we say let तकरीर की जगह let पर us take a contribution for something, और अगर कहें कि आए सब जो है किसी चीज के लिए मिलकर इकट्ठे करते हैं पैसे that one is not God's money. और ये खुदा के पैसे. If we gather in the name of the Lord Jesus अगर हम खुदावंद यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं and we pray in His name here और अगर हम उसके नाम से यहाँ दुआ करते हैं and we say offering time, और हम कहते हैं कि हदिये का वक्त है, drop something for God. खुदा के लिए कुछ यहाँ रखें Any money that enter that place, और इस जगह के अंदर जितने भी पैसे दाखिल होंगे if you go and steal it, अगर आप इसे जाकर चुराएं you have signed your death certificate. और फिर आप अपने जो है मौत के The इसके spirit- जो है सर्टिफिकेट पर साइन The करते हैं Spirit of Jesus will come after you. और खुदा का रूह जो है वो फिर आपके पास It is a आएगा. very dangerous thing. और ये बहुत खतरनाक बात है. So I was warning my church members. इसीलिए मैं अपने चर्च के लोगों को जो है वो इस बारे में बताता हूँ, The woman- उन्हें पहले ही नसीहत करता The हूँ. woman that did it was at the back. वो जो औरत थी जिसने ये किया I didn't even call her name. और मैंने उसका नाम नहीं लिया, वो पीछे ही थी She forgot that after she told me, और वो भूल गई कि जब उसने मुझे बताया and I told her to kneel down, और मैंने उसे कहा कि घुटने टेक and I laid hands on her. और मैंने अपना हाथ उस पर रखा I said, the mercy of God speak for और you. मैंने कहा कि खुदा का रहम जो है तेरे लिए काम करे, Receive your healing. अपनी शिफा को रिसीव कर. She said immediately, और उसने कहा उसी वक्त all those things working that were peppering her in her body, something Or- was peppering her. और हर कोई चीज जो है वो उसके जिस्म को जो है झंझोड़ रही She थी, stole the money. जो उसने पैसे चुराए थे The thing stopped. और वो चीजें जो है वो रुक The गई. angels that were coming in her dream to flog her, और वो फरिश्ते जो आकर उसे जो है वो तंबीह करने के लिए ख्वाब में आते, they stopped. वो भी रुक गए She became well again. और वो ठीक होना शुरू हो गई. It looks like God has forgiven her. और इसी तरह है कि खुदा ने उसे मुआफ फरमा दिया. And this thing is scriptural. और ये जो है ये लिख बयान की गई है. If you read James chapter 5, अगर आप जो है वो यकूब के 5वें बाब का मुतालिया करें from verse 13, 13वीं आयत से, is there any sick among you? और खुदा का कलाम सिखाता है कि क्या तुम्हारे दरमियान कोई Let बीमार them है, call for the elders of the church. और फिर वो चर्च के बुजुर्गों के पास And let आए them pray over them, और उनके ऊपर वो दुआ करें anointing them with oil और जो है तेल के साथ उन्हें मसा in करें the name of the Lord. यीशु और खुदावन के नाम And से. if they have committed sins, अगर उन्होंने गुनाह किया है it shall be forgiven unto them. और वो फिर माफ किया जाएगा. If you read John chapter 20 अगर आप यूहन्ना की इंजील के 22वें बाब का मुतालिया and करें, 21, 21वें बाब का मुतालिया करें, Jesus was telling Peter, यीशु मसीह जो है वो पतरस को बताता है whoever sins you remit, you forgive, और गुनाह जो तुम करते हो वो माफ किए जाएंगे, they are forgiven. वो माफ किए जाएंगे. Whoever sins you retain, whoever sins you retain, रिटेन, whoever sins you say let judgment be on this person, ओके ओके. वो गुनाह जो है जो हम कहते हैं कि इस शख्स पर अदालत हो या इस, it shall be retained against them. और वो जो है उनके बारे में होगी. So that is why we lay hands on you in the church, इसीलिए चर्च के अंदर वो आप पर जो है अपने हाथ रखते so हैं that in case you have committed sins, कि अगर आपने गुनाह किया है as the man of God lay hand on you, और अगर खुदा का हादिम आप पर हाथ रखता है the mercy of God will speak for you. और खुदा का रहम जो है वो आपके वसीला Because से, church is a spirit. क्योंकि चर्च जो है वो एक रूह है. So the woman got angry. और वो औरत जो है वो रंजीदा हो She गई said, I give example with her story.
और मैंने कहा कि मैंने तेरी कहानी से जो है वो मिसाल ली, So she stopped church. और उसने चर्च आना बंद कर दिया। And I'm a leader that will not beg you to come to church. और मैं एक ऐसा लीडर नहीं जो कि आपसे दुर्हास करूं कि आप If I चर्च am आएं। doing the right thing, I will not beg you to come to church. और अगर मैंने सही काम किया है तो मैं आपसे दुर्हास नहीं करूंगा My कि duty चर्च is आएं। not to beg you to come to church. मेरी ड्यूटी जो है वो ये नहीं कि आपसे दुर्हास करूं, My मैं ये duty करूंगा। is to preach to you, to bring you to church. मेरी जो है ड्यूटी यही है कि मैं आपको खुदा के कलाम को बताऊं And take you as my daughter and my son. और आपको अपने बेटे बेटियों के तौर पर लूं And teach you and correct you. और आपको नसीहत करूं और सिखाऊं। All scripture is given by inspiration. और हर जो है कलाम जो है वो एक इंस्पिरेशन के तौर पर And दिया it is जाता है, profitable for instruction in righteousness. और ये जो है वो रास्तबाजी के लिए और दुरुस्ती के लिए है। I think 1 Timothy chapter 3 verse 16. और पहले थिमोथियस के अंदर जो है हम देखते हैं उसके 3 बाब के अंदर, So I don't beg people when they do something wrong. जब लोग जो है वो गलत करते हैं तो उनसे दुर्हास नहीं करता, Because if a child break this glass क्योंकि अगर एक बच्चा इस ग्लास को तोड़ता है and you flog the child, और आप उस बच्चे को मारे, Arya, why did you break this glass? और ये तूने क्यों इस ग्लास को तोड़ा, और इसी तरह आप उसको मारे And Arya start to cry. और आर्य रोना शुरू कर दे, And you did not caution Ariel. और अगर आप आर्य से जो है वो पूछे See, ना, he break the glass now. उसने ग्लास तोड़ा है, You flog him. आपने उसे मारा है, He's crying. वो रो रहा है, He's crying. वो रो रहा है, Now you now feel pity for him. और आप जो है उसके लिए जो है वो, You now दुख जो है went वो- to carry the child और फिर आप उस बच्चे को ले without passing a message और एक जो इस तरह का शख्स है and start to pet the child. और इस बच्चे को जो है वो उसके साथ जो है रहम The करना शुरू child करे, will now think that the glass he break is not wrong. और वो बच्चा ये सोचना शुरू करेगा कि जो ग्लास उसने तोड़ा है ये गलत नहीं। So before you will pet the child, जब आप उस बच्चे के साथ मोहब्बत दिखाते you हैं, will carry the cane again. आप जो है वो सोटी को ले, Keep quiet. खामोश रहें। Did you know that what you did is wrong? आप उसे कहें कि तू जानता है जो तूने किया ये गलत किया, Oh yeah, tell me daddy, I'm sorry. और कह के ए बाप Tell me I will not do it again. और कह कि मैं ये दोबारा नहीं करूंगा, Then I will not flog you. और फिर मैं तुझे नहीं You मारूंगा। will see when you discipline and correct the child, you will और not keep आप quiet. देखेंगे जब आप इस तरह The child will now realize जो है वो फिर इस बात को लेगा that this thing is wrong. कि ये जो उसने किया ये गलत है, You will take the correction. और फिर वो दुरुस्ती लेगा But look at what you did. कि देखिए उसने क्या किया। Flog the child. जब आप उस बच्चे को मार The देते child is हैं, crying. बच्चा रो रहा है The child has not gotten the message. और उसने जो है अभी तक सबक नहीं सीखा, You now want to be begging the child again. और फिर आप जो है बच्चे से माजरत करना Please शुरू don't कर cry, I'm my only और baby. कहे कि तू मेरा एक ही बच्चा है, रो Don't नहीं रो cry, I'm नहीं, my only baby. तू मेरा एक ही बेटा So है, the रो baby नहीं will रो be crying, नहीं, mama. और बच्चा इस तरह रोना शुरू करे Who cry, mama? और वो बच्चा जो है रोए, Tomorrow the child will break another one. और बच्चा जो है वो कल दूसरा ग्लास When you break another one, जब वो दूसरा ग्लास the तोड़ेगा, child will now understand that once he cry, he will come and beg you. और वो बच्चा जो है वो यही समझेगा कि जब वो रोएगा तो फिर आप है उसको आएंगे मनाने। You are not saving that child. आप उस बच्चे को बचा नहीं रहे, You are destroying that child. आप उस बच्चे को हलाक कर रहे हैं। So when somebody do wrong और जब एक कोई शख्स बहुत ज्यादा गलत है, and you correct the person आप उस शख्स की दुरुस्ती करते and the हैं person gets angry, और ये शख्स जो है रंजीदा होता है, don't beg the person. और उस शख्स से माजरत ना करें। If the person says doesn't want to come to church again, अगर वो शख्स कहे कि मैं चर्च नहीं आऊंगा दोबारा, leave them. उन्हें रहने दें। There are members everywhere. हर जगह लोग मौजूद हैं। The person will have been in church for 28 years. अब हो सकता है कि वो 28 साल से आ रहा They हो, will always come वो back. हमेशा आएंगे, Something angel will bulala them. और जो है वो उन्हें जो है फरिश्ते ही खींच They will लाएंगे, come back after 3 months. वो 3 महीने बाद आ जाएंगे। If you beg them, अगर आप उनसे they माजरत will करें, become stubborn members that will be disturbing the और church. फिर वो चर्च के ऐसे शरीर लोग बन जाएंगे जो फिर हमेशा चर्च में कोई ना कोई इस तरह का काम Anything करते they रहेंगे। do and you tell them to vex, don't get angry. और कोई भी चीज ऐसी जो वो करते हैं और आप रंजीदा होते हैं, Then God will be annoyed with you, the pastor, that you are not representing me well. और फिर खुदा जो है वो आपसे पूछेगा, सवाल करेगा कि तुम जो है मुझे सही तौर पर जाहिर नहीं कर The रहे। woman got angry and left our church. और वो औरत जो है रंजीदा हो गई और चर्च छोड़ के चली I गई, called her only twice.
और मैंने उन्हें उससे 2 बार बुलाया I said, I preached, I gave example, I didn't call your name. और मैंने कहा मैंने तेरा जो है मिसाल दी लेकिन तेरा नाम नहीं लिया It is my prerogative, my right और ये मेरा हक है to make example as I wish. एक ऐसी मिसाल बयान करना जो मैं चाहता हूँ With the right motive. एक अच्छे जो है मोटिव के साथ Not to laugh at anybody. किसी पर हंसने की वजह But से to नहीं use the story to warn people that don't do this thing. और इस कहानी को इस्तेमाल करके दूसरों को सबक सिखाने के लिए कि वो ऐसा ना She करें left the church और वो चर्च को छोड़कर चली गई after 1 year. 1 साल के बाद Those things that left her body. और उसके बदन में जो चीजें When she stole the money, जब उसने पैसों को चुराया they returned. और फिर वो वापस She आई became sick. और वो बीमार होना शुरू And हो she गई died. और फिर वो मर ही I गई am telling you true life story. और मैं आपको एक हकीकत कहानी सुना Her रहा हूँ name is Edirin. That is how we call her in Nigerian language. Edirin. एडीनी It's true life story. और ये सच्ची कहानी है I'm not laughing at her. मैं उस पर हंस नहीं रहा I'm using the same story now to start issue again. मैं आप यही कहानी इस्तेमाल करते हुए आपको सिखा रहा हूँ Church is a spirit. चर्च जो है वो एक रूह है The spirit of God is here. खुदा का रूह यहाँ मौजूद है The spirit of God wants to teach you. खुदा का रूह आपको सिखाना चाहता You है need to believe in the spirit. और जरूरत है कि आप रूह में जो है इसका It is- मुताला करें और इस पर ईमान It's the रखें spirit of God that is using his servants. और खुदा का रूह है जो अपने खादिमों को इस्तेमाल करता It's the है spirit of God that makes you to understand the word of God. और खुदा का रूह ही है जो आपको इस काबिल बनाता है कि खुदा के कलाम को समझ सकें The spirit of God is here. खुदा का रूह यहाँ He मौजूद said, in the है last days, और खुदा के कलाम में लिखा है I कि आखिरी दिनों will में pour out my spirit. मैं अपनी रूह उंडेलूंगा I will pour out my spirit और मैं अपनी रूह जो है उंडेलूंगा upon all flesh. हर फर्द बशर And पर your sons and daughters shall prophesy. और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत Why करेंगे did he say I will pour my spirit? और क्यों उसने कहा है कि मैं अपनी रूह उंडेलूंगा Look at it in 1 Corinthians chapter 2 quickly. पहले कुरिन्थियों के अंदर इसको देखें Quickly, 1 Corinthians chapter 2. पहले कुरिन्थियों और उसके दूसरे बाब के अंदर I want you to see something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ Somebody shout hallelujah. कोई कहे हालेलुया Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया Look at 1 Corinthians chapter 2. पहला कुरिन्थियों दूसरे बाब Look at verse 10. और उसकी 10वीं आयत को देखें But God has revealed them unto us by His Spirit. लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया Okay, let me take it from verse 9. आए 9वीं आयत से 1 देखें Corinthians 2:9. Listen to me, listen to me. मुझे सुने Don't make noise in the church. चर्च के अंदर शोर नहीं करें Good. Verse 9. अच्छी बात है But as it is 9वीं आयत से written, as it is बल्कि written, जैसे कि लिखा है eye has not seen, वैसा ही हुआ जो चीजें ना आंखों ने देखी nor ear heard, कानों ने ना सुनी neither have entered into the heart of man ना आदमी के दिल में आई the things which God has prepared for them that love Him. वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर But दी God has revealed them लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया unto us क्योंकि रूह के सबब से by His Spirit. रूह के सबब से For the Spirit रूह सब बातें searcheth all things, बल्कि खुदा की तह की बातें भी yea, the deep things of God. दरियाफ्त कर लेता है That's why I'm telling you that church is a spirit. इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चर्च एक रूह है It is the Spirit that showed me that church is a spirit. और ये वही रूह है जो मुझे दिखा रही है कि चर्च एक रूह है Want the people to fear me inside church जो लोग चर्च के अंदर होते हैं और मुझसे डरते so हैं that they will not see my bad side. और वो मेरा जो है वो दूसरा रूप They will नहीं not see देखेंगे my judgment. वो मेरी अदालत नहीं देखेंगे Look at it. यहाँ देखें Look at verse 10. और 10वीं आयत को For देखें God has revealed them unto us लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया by His Spirit. क्योंकि रूह For the Spirit searches all things, सब बातें बल्कि yea, the deep things of God. खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त For कर what लेता है man knoweth the things of a man, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है save the spirit of man which is in सो him. इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है Even so, the things of God इसी तरह खुदा की रूह के सिवा knoweth no man, कोई खुदा की बातें नहीं जानता but the Spirit of God. और खुदा की बातें नहीं जानता मगर खुदा का रूह Verse 13. 13वीं आयत के Somebody अंदर should carry this child and put her there. Verse 13. 13वीं आयत के अंदर Hallelujah. हालेलुया Pastor, please tell somebody to carry this child. इस बच्चे को नीचे ले जाएं Verse 13. 13वीं आयत के अंदर Which things also we speak, और हम इन बातों को इन अल्फाज में नहीं बयान करते not in the words which man's wisdom teacheth, जो इंसान
इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, but which the Holy Ghost teacheth, बल्कि उन अल्फाज में comparing spiritual things with spiritual. जो उन्हें सिखाए और रूहानी बातों का But the natural man, रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं, मगर नफसानी आदमी, listen now, look at verse 14. The जो natural भी man, को देखे, मगर natural man नफसानी आदमी that thinks that church is just where people gather and dance. जो सिर्फ ये सोचता है कि चर्च एक ऐसी जगह लोग जहाँ जमा होते हैं और झूमते The हैं, natural man ये नफसानी आदमी receive not the things of the Spirit of खुदा God, की रूह की बातें कबूल नहीं करता, for they are foolishness to him. क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं Neither can he know them, और ना वो उन्हें समझ सकता है, because they are spiritually क्योंकि वो discerned. रूहानी तौर पर परखी जाती They है, are spiritually discerned. क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी It जाती is the will of God है। ये खुदा की मर्जी है that you should have the Spirit of Jesus, कि आपके पास यीशु का रूह मौजूद that हो, your eyes should be open कि आपकी आंखें खुले, to know कि जान सके that our God, कि हमारा खुदा He can bless, वो बरकत दे सकता He है can also punish. और वो सजा भी दे We सकता must है। teach it to the people हमें लोगों को ये सिखाना so होगा that they know that our God can bless ताकि वो जान सके कि हमारा खुदा बरकत and He देता है can punish. और वो सजा भी दे सकता है। Because most Christians now, यहाँ बहुत सारे लोग जो they हैं think that God can only bless. और वो यही सोचते कि खुदा सिर्फ बरकत ही देता They है think that once they just do anyhow, God will forgive them. और वो सोचते हैं कि हम जो कुछ भी करेंगे खुदा हमें माफ So करवा they are देगा not afraid of God in the church. और वो खुदा से डरते नहीं चर्च के अंदर They do anyhow inside the और church. उनका जो दिल करता है वो चर्च के अंदर वही करते हैं। They carry secret into the church. वो चर्च के अंदर सिगरेट ले आते हैं They have a type of imagination inside the church. और चर्च के अंदर वो गलत गलत तस्वीरात को भी ले आते हैं। You must know आपको जानना होगा that this is the kingdom of God. कि ये खुदा की बादशाही है, This is the kingdom of God. ये खुदा की बादशाही The है, spirit of the kingdom is here. ये खुदा की बादशाही की रूह यहाँ मौजूद है। Stand to your feet. अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। The power of the kingdom is here. खुदा की बादशाही की जो कुदरत है वो यहाँ मौजूद The है। spirit of God is here खुदा की रूह यहाँ मौजूद है to bring a blessing to you. कि आपकी जिंदगी में एक बरकत लाए। It is that spirit यही वो रूह है that I've been using it since 1 week. जो मुझे एक हफ्ते से इस्तेमाल कर रही Since है। 1 week. एक हफ्ते से, Since 1 week. एक हफ्ते से I've been preaching और मैं कलाम सुना रहा हूँ night and day. दिन और रात, Night and day. रात और दिन, I'm not tired. और मैं थका नहीं। Why am I not tired? क्यों नहीं मैं थका? Because I've seen the spirit. क्योंकि मैंने उसकी रूह को देखा है I relate with him और मैं उससे जुड़ा हूँ and I speak from him और मैं उसके वसीला से बात करता and हूँ he give me his grace. और उसने मुझे अपना फजल दिया So है। I'm not speaking of हालेलुया। him. और मैं अपने आप से नहीं I'm बोलता speaking by his powers. और मैं उसकी कुदरत से बात करता हूँ So I remain fresh all the time. और मैं हमेशा जो है वो फ्रेश रहता I हूँ carry the fire all the time. और मैं हर वक्त आग से भरा In रहता the हूँ last days, और आखिरी दिनों के I अंदर am to take killing. हालेलुया I will pour my spirit मैं अपनी रूह जो है वो डालूंगा upon all flesh हर फर्द बशर पर and your sons and daughters. और तुम्हारे बेटे बेटियां He said they shall prophesy. वो नबूवत करेंगे। It is the will of God ये खुदा की मर्जी that है the spirit should come upon you कि खुदा का रूह आप पर आए and use you for his glory. और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल I want you करे। to open your mouth मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुंह को खोलें and say this word with me. और इन अल्फाज को मेरे साथ दोहराएं। Say, Spirit of Jesus. कहें यीशु के रूह, Say, Holy Spirit, कहें खुदाए रुल कुद्स come upon me now. मुझ पर आ, Give me grace मुझे फजल दे to follow you now. ताकि तेरी पैरवी कर सकूं। Come upon me now. मुझ पर अभी आ, Open your mouth अपने मुंह को खोले and call upon him now और उसको बुलाना शुरू कर दे to feed you now, और वो आप महसूस करना शुरू कर to दे, bless you now. वो आपको बरकत दे, Talk to him now. उससे बात करें। हालेलुया। Spirit of Jesus. यीशु का रूह Talk to him. Open your mouth, say, Lord अपने Jesus. मुंह को खोले और कहें खुदावंद यीशु, Whatever be your heart desire, begin to talk to him. जो भी आपकी दिली मुराद है, Whatever be your heart desire, begin to talk to him. जो भी आपकी दिली मुराद है पूरा होना शुरू And repent from every bad thing now. और हर बुरी चीज से जो है तौबा Begin करना to शुरू confess your sin. अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू Begin to करें, confess your sin. अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू करें। Begin to say, Lord, forgive me. कहें खुदावंद मुझे माफ फरमा, I will not do bad in your church again. मैं तेरे घर के अंदर दोबारा बुरा I काम will नहीं not sin against करूंगा, the pastor. मैं हाकिमों के खिलाफ गुनाह नहीं I will not करूंगा, sin against the church. मैं चर्च के खिलाफ गुनाह
Spirit. उसके मुझे अपने रूह से भर दे Let your power touch me now. और तेरा रूह जो है वो मुझे Fire of the छुए। रूह की आग, Close your eyes. अपनी आंखें बंद करें। Fire. रूह की आग, Fire. आग, Receive the Holy Ghost. खुदा के रूह को रिसीव Open your करें। mouth. अपने मुंह को खोलें। Fire. आग, Fire. आग, Fire. आग, Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. अपने लोगों को छू, जिंदगी में मौजूद हो, इन निशानों को जान जाहिर हो। यीशु के नाम से। इसको रिसीव करो। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। By the grace of God, come upon you. यीशु मसीह के नाम से खुदा का रूह आप पर आए। इस कुदरत को कबूल करें। अपने मुंह को खोलो और इससे बात करना शुरू करें। Jesus. यीशु मसीह हो गया। उसकी आग को कबूल करें। तेरा शुक्र है। Jesus. यीशु के नाम से। चीज़ जो आपको मुश्किल परेशानी में जो लड़के वहाँ खड़े हैं, Don't be laughing when we are praying. हंसो नहीं जब हम दुआ कर रहे हैं। खुदा का रूह आपसे You रंजीदा can हो। come in, but आप अंदर आ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं तो in the name of Jesus. यीशु मसीह के